orbitals. I have taken one example, that is the BH3 molecule or BF3 molecule. Its example is BH3 molecule. The wave function for 3sp2 hybrid orbitals are the wave functions for 3sp2 hybrid orbitals are psi sp2 1, psi sp2 2, and psi sp3 3. That's 3. You know that S1s atomic orbital is combined with two p atomic orbitals, then forms that is a 3 sp2 hybrid orbitals. That is sp21, sp22, and sp3. Then here psi sp21 is equal to, that is the A1 phi 2s plus B1 phi 2px plus C1 phi 2p1. That is the first one. Second, sp22 is equal to A2 phi 2s plus B2 phi 2px plus C2 phi 2p1. Then third one, psi sp33, that is equal to A3 phi 2s plus B2 phi 2px plus B3, then here C3 phi 2p1. This is the equation number 1, 2, and 3. Here you know that S orbital is equally distributed among the 3 hybrid orbitals, because you know that one S atomic orbital is combined with, that is the 2 p atomic orbitals to form 3 sp hybrid orbitals. Means one S atomic orbitals is equally contributed to 3 hybrid orbitals. Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, you are. Yeah. Since S orbitals, therefore A1 square is equal to A2 square is equal to A3 square is equal to 1. You understand it? Yes or no? Yes, sir. Yeah, A1 square plus A2 square plus A3 square is equal to 1. Hello? Yes, sir. Which is Yes, correct? sir. Sir, Yes, A1 square plus A2 square
plus A3 square is equal to 1. But A1 is equal to A2 and A2 is equal to A3. You understand it? You see A1 is equal to A2 is equal to A3. You understand it? And A1 square plus A2 square plus A3 square is equal to 1. You understand it or not? Yes, sir. So you know that A1 is equal to A2 is equal to A3, and here you know that is A1 is equal to A2. So this becomes a yes, yes Yes, or sir. no? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. A1 square is equal to 1 by 3. तो A1 is equal to क्या रहेगा 1 by root 3 रहेगा Root 3. बराबर है तो ये क्या रहेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन रहेगा 4 तो आपको A1 का तो वैल्यू मिल जाएगा assume that second thing assume that psi sp21 points towards the x-axis. Hence, this hybrid orbital will have contribution from 2s and 2px orbital only. Orbital only. Then contribution from 2p orbital will be the contribution from 2py orbital will be 0. If the 2 pi orbital contribution is 0, so that C1 is equal to 0. ध्यान पे आ गया तो आप देखिए psi sp21 में that orbitals means sp2 hybrid orbitals is point toward the x-axis. ओके तो ये तो कंट्रीब्यूशन कहाँ का रहेगा 2s एंड 2p का px का ही रहेगा 2s एंड 2px का 2py का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो कोएफिशिएंट जो है c1 इसका 2py का वो क्या रहेगा 0 रहेगा तो c1 is equal to 0 then you know that sp2 or psi sp21 is a normalized since psi sp21 is normalized. Then you know that a1 square plus b1 square plus c1 square is equal to 1. बराबर है? Since c1 is equal to 0, therefore a1 square plus b1 square is equal to 1. You understand it or not? Because value of the Yes, c1 sir. is equal to 0. Then you know the value of the a1. What is the value of the a1? 1 by root 3.
This is supportive equation number 5. Substituting the value of a1 in equation 5. तो आपको क्या मिल जाएगा? 1/√3. a1 का वैल्यू 1/√3 प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये और नो? ये a1 का वैल्यू खाली मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है. आपको मालूम हो गया ये a1 का, ये यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है 1/√3. तो a 1/3 है ना, 1/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा ना. a1 Yes, का sir. वैल्यू है ना ये, तो a1 स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना. तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, therefore 1/3 प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा. तो b1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/3. ये और नो? 2/3 तो ये b1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस 2/3 आ जाएगा. 2/3. 2/3 आ जाएगा. तो b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2/3. √2/3. दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. तो आपको b1 का वैल्यू मिल जाएगा. Yes. Yes, sir. Then Yes, sir. next one, psi sp2 1 and psi sp2 2 are orthogonal as also, that is the psi sp21 and psi sp23 is also orthogonal. तो मैं इसके लिए पहला लिखता हूं, बाद में वो लिखता हूं. तो ये ऑर्थोगोनल रहेगा तो क्या रहता है, ये दोनों ऑर्थोगोनल है. तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 इज इक्वल टू 0. बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. या तो यहाँ पे b2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, a1 का वैल्यू मालूम है मुझे, a2 का वैल्यू मालूम है, b1 का वैल्यू मालूम है, तो b2 में निकाल सकता है ना. Yes, sir. I write here substituting the values of a1, a2 and b1 in equation. I write, this is the 7th number equation for your convenience. This is the 7th number equation. We get, this is the 1/√3 into 1/√3 into a1 is equal to a2 है, और a1 का वैल्यू है 1/√3 प्लस वो b2 का वैल्यू है √2/3, b1 का वैल्यू है √2/3 into b2 is equal to 0. Correct? Yes, sir. Yes Yes, or sir. no? Yes, sir. Yes. Yeah. तो 1/√3 into 1/√3 वो रहेगा 1/3 प्लस √2/3 into b2 is equal to 0. तो b2 is equal to क्या रहेगा, ये प्लस है, ये बाजू में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/3. बराबर है, ये प्लस है ना, तो ये बाजू में जाएगा तो माइनस sir. हो जाएगा. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा.
√2/3 बराबर है। तो ये सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, B2 इज इक्वल Yes, टू sir. माइनस, ये सर नो, Yes, sir. ये जो है ना, या Sir. ये जो है ना 1/√3 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय √2/3। तो ये ऊपर गया तो क्या रहेगा, 1/√3 इंटू √3/√2 रहेगा। तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो √3 √2 रहेगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन होके क्या हो जाएगा, √6 आपको मिल जाएगा। बराबर है, यस। तो Yes, sir. B2 का वैल्यू Yes, आपको sir. मिल जाए, ये इक्वेशन है 8, B2 का वैल्यू मिल जाए। अभी मुझे B3 का वैल्यू भी निकालने का है, तो क्या रहेगा B3 का वैल्यू, ये सेम रहेगा, खाली यहाँ पे ये psi sp2 1 is orthogonal with, that is a psi sp2 क्या रहेगा, a1 b1 इंटू b3 इज इक्वल टू रहेगा 0। बराबर है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, a1 का वैल्यू कितना है, 1/√3 है, a3 का वैल्यू भी 1/√3 है, प्लस b1 का वैल्यू आपको मालूम है कितना है, √2/3 √2/3. इंटू b3 इज इक्वल टू 0। तो ये सेम वैल्यू आ जाएगा, b3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, -1 -1/√6. √6 रहेगा। बराबर है, 8 6 बराबर है, ये B3 का वैल्यू आपको मिला है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, कोई डाउट है आपको? तो नेक्स्ट वन, psi sp2 is normalized. Then what happens if it is normalized? Then a2 square plus b2 square plus c2 square is equal to 1। उसका जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दिया, एक तो वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बराबर है। Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए c2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 माइनस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। बराबर है। तो आपको मालूम है 1 माइनस a2 का वैल्यू कितना है, 1/√3 उसका स्क्वायर प्लस और उसका स्क्वायर है। बराबर है या नहीं? ये देखिए b2 का कितना वैल्यू है, -1/√6, ये -1/√6 है। ठीक है। Yes, आपको sir. ये सॉल्व करनी है, तो ये कितना आ जाएगा, a1 माइनस a1 बाय √3 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा, 1/3 रहेगा। 1/3. बराबर है। और ये +1/6. माइनस का स्क्वायर है, हाँ, ये प्लस रहेगा या माइनस भी रह सकता Plus 1/6. Yes, sir. Plus. Plus. Plus, sir. Plus. है। हाँ, तो ये जो प्लस है ना, हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सॉल्व किया क्या रहेगा, 6 1 minus प्लस 3
1 माइनस हाफ सर, 3/6 हो हाँ जाएगा तो फिर हाफ हो जाएगा, तो आंसर हाफ आ जाएगा। बराबर है। तो ये आंसर क्या रहेगा, हाफ। ये कितना है, C2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ है, तो C2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/√2। 1/2। रूट रहेगा ना, वन। हाँ बराबर है, वन। वो C2 इज इक्वल रहेगा 1/√2। ठीक है, तो C2 इज इक्वल टू 1/√2, एक प्लस रहेगा या माइनस भी रह सकता है। ये जो वैल्यू है प्लस माइनस रह सकता है, क्योंकि इफ दैट फॉर्म्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो उसका वैल्यू जो रहेगा प्लस रहेगा। इट फॉर्म्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, माइनस। माइनस रहेगा। या यहाँ पे C2 का वैल्यू आपको C3 का वैल्यू निकालने का है, तो क्या करने का है, इस sp23 इस sp23 इज नॉर्मलाइज, तो क्या हो जाएगा, A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा। बराबर है। Yes, sir. उसका यस सर। कोएफिशिएंट जो कुछ इसका कोएफिशिएंट है उसका खाली स्क्वायर स्क्वायर करने का और उसका सम करने का, वो तो आपको इज इक्वल टू 1 रहना चाहिए। तो ये C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये रहेगा A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो 1 माइनस A3 स्क्वायर का आपको A3 का वैल्यू मालूम है, वो कितना है, 1/√3 स्क्वायर प्लस ये B3 का वैल्यू आपको मालूम है, B3 का वैल्यू कितना था, 1/√6। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक माइनस 1/√6, तो उसका भी स्क्वायर है। बराबर है, तो ये कितना रहेगा, हेलो, ये C3 का वैल्यू कितना रहेगा, वो जितना ये जो आ गया है ना उतना ही रहेगा। ये कितना रहेगा, आप प्लस माइनस रूट 2 1/√2। रहेगा। बराबर है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन कितना, एज, और दिस इज इक्वेशन नंबर हम लोग 11 फॉर योर कन्वीनियंस। तो अभी देखिए C2 एंड C3 का वैल्यू हम लोग के लिए कैसा लेने का है। सपोज टू भी C2 वैल्यू हम लोग ने पॉजिटिव ले लिया तो वो फॉर्म हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड C3 का वैल्यू नेगेटिव ले लिया तो हम लोग के लिए क्या फॉर्म हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे C3 निगेटिव लेता हूँ, लेट पॉजिटिव वैल्यू, then the value of C3 will have to be negative, so that psi sp2 and psi sp23 fulfill the requirement of orthogonality. That means that is A2 into C3 is equal to 0. कब है ये, C2 ये कब है, C2 इज इक्वल टू प्लस 1/√2
and C3 is equal to minus 1 by root 2. Substituting these values, आप देखिए A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 in equation number 1, 2, 3 we get the 3sp2 hybrid orbital wave function are psi sp21 is equal to A1 का वैल्यू कितना है? A1 का वैल्यू कितना है? 1 by root 3 phi 2s बराबर है प्लस Yes, sir. B1 का वैल्यू कितना है? by 3 बराबर है phi 2px और ध्यान पे देखो C1 का वैल्यू जो था वो 0 था, तो C1 का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2y का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका जो 12 है। उसके बाद psi sp22 का रहेगा, A2 का वैल्यू कितना है? ये 1 by root 3 phi 2s प्लस B2 का वैल्यू minus 1 by root 6. B2 का वैल्यू कितना है? बराबर है, तो वो सब्स्टिट्यूट करने का Yes. मैं माइनस लिखता हूं, माइनस ध्यान पे रखने का 1 by root 6 बराबर है। Yes, sir. B1 का वैल्यू मैंने लिख दिया है। उसके बाद साइन बराबर है 2px प्लस अभी मुझे C2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, तो C2 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे लिया है, अब हमने C2 का वैल्यू प्लस ले लिया है, तो यहाँ पे रहेगा प्लस रूट 2 1 by root 2 phi 2py इक्वेशन रहेगा 30 नंबर और लास्ट रहेगा phi sp23 इक्वल टू A3 का वैल्यू सेम है 1 by root 3 phi 2s। अभी मुझे B3 का वैल्यू चाहिए। B3 का वैल्यू क्या था? वही सेम था ना, minus 1 by root 6. 1 by root 6 बराबर है, माइनस 1 by root 6 phi 2px माइनस अभी C1 का वैल्यू क्या, C3 का वैल्यू क्या है? माइनस 1 by root 2 बराबर है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 1 by root 2 है ना, phi 2py दिस इज द number, yes 40. So this is the wave function for sp2 hybrid. Then question arises, is it correct or it is wrong? Yes, is it correct or wrong? How you can identify? Yes, ये करेक्ट है या रॉन्ग है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? Square है तो सब आपका 46 equal to 1. यस बोलो, Applying बोलो। the condition of normalization. करेक्ट, अप्लाई द कंडीशन फॉर द नॉर्मलाइजेशन, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन अप्लाई करके जो कोएफिशिएंट है
ये यहाँ पहला इक्वेशन में दो कोएफिशिएंट है ए और ई, इसका स्क्वायर कर दिया और वो स्क्वायर का समेशन कर दिया, वो 1 आ गया। तो दिस इज द यस ऑलवेज वेव फंक्शन फॉर द sp2 हाइब्रिड। आप ये सबका मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर कीजिए, कितना आता है आप देखिए 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ये कितना आता है आप देखिए, और 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/6 का स्क्वायर प्लस -1/√2 का स्क्वायर, वो कितना आता है देखिए। ये सबका वैल्यू आपको 1 ही मिल जाएगा। 1 नहीं मिला तो कुछ तो रॉन्ग है, 1 मिल गया तो 100% दिस इज एप्लीकेबल फॉर द sp2 hybridization and that is the correct one। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या यू कैलकुलेट इट, वो 1 में आ जाएगा। तो दिस इज द construct the wave function for sp2 hybrid orbitals। तो आगे जाएंगे हम लोग। आफ्टर 1 PM आपका कुछ लेक्चर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेक्चर है या नहीं? है सर। Lecture है sir। लेक्चर है। तो अभी हमारे पास 20 मिनट बचा है, तो कंटिन्यू करेंगे। तो ये 20 मिनट्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो वी विल डिस्कस दैट इक्वेशन टुमारो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो आपका यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आ जाएगा कंस्ट्रक्ट द वेव फंक्शन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसा आ जाएगा फॉर 5 मार्क्स। और जो नेट और स्टेट एग्जाम में आ जाएगा उसमें से सपोज टू बी ए दिया जाएगा, सपोज टू बी ए दिया जाएगा और बी दिया जाएगा, वो जो psi 1 is equal to a1 phi 2s plus b1 phi 2pz, और c दिया जाएगा psi 2 is equal to b2 phi 2s plus b2 phi 2 minus z। तो ए बी सी दिया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट रहेगा इसमें से? वेव फंक्शन और sp2, ये नहीं दिया जाएगा आपको, ये मैंने लिखा है, ये नहीं दिया जाएगा। तो क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा? तो आपको क्या देखने का है? sp2 बोलेंगे तो एक काम करने का, सपोज भी ये डी दिया है, ऐसा आंसर, ये भी डी दिया है सर, तो उसमें से आपको क्या देखने का है? उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उसका सम वो 1 आना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे देखो, ये परसेंटेज में देखेंगे तो ये कितना परसेंटेज है, यस कैरेक्टर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कितना कैरेक्टर है? ये रहेगा 0.33 फ्रैक्शन, तो इसका मतलब है 33%, बराबर है। और जो p कैरेक्टर है वो आप देखिए, ये कितना रहेगा? 0.67 फ्रैक्शन, इसका मतलब है 67%, ये रहेगा 33%। आप देखिए, उससे ही मालूम हो जाएगा ये वेव फंक्शन किसका है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का है।
और दूसरा बात है, आप यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखेंगे तो A1 एंड जो B1 है और A2 एंड B2, यहाँ पे A2s है, A2p, इसमें 50% S कैरेक्टर है, इसमें 50% P कैरेक्टर है। तो ऐसा कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसमें 50% S कैरेक्टर रहता है, 50% P कैरेक्टर रहता है, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। तो इसका साइकोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है, इसका यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये क्या है आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन में यस्टरडे आई वाज डिस्कस इट, ये उसका साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम देखिए 1 आ जाएगा, और उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर आप लोग निकलेंगे तो 1:1 में 50% 50% रहेगा। यहाँ पे आप देखिए ये परसेंटेज एस कैरेक्टर निकलेंगे तो यहाँ पे ये 33% रहेगा, ये 67% रहेगा। अभी आप sp3 जाएंगे ना तो उसमें क्या रहेगा, एस कैरेक्टर जो रहेगा वो 25% रहेगा और जो पी कैरेक्टर है वो 75% रहेगा। यस करेक्ट है ना? अरे ये और नो? Yes, sir. चलो, तो ये जो वैल्यू आ गए, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करने के बाद और इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद स्क्वायर का, आप देखिए उसमें से 1 में इसका वैल्यू कितना है, और ध्यान पे आ गया, ये मैंने क्या कर दिया है, 1√3 स्क्वायर है प्लस 2√2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो इसका मैं परसेंटेज में निकलने का होगा तो ये कितना रहेगा, 100%। तो इसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट कैसा करना पड़ेगा, 1/√3 स्क्वायर इंटू 100 बराबर है प्लस 2√3 स्क्वायर इंटू 100। तो आपको ये परसेंटेज आ जाएगा, ये कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली वो परसेंट रहेगा, ये 33% रहेगा या 33 पॉइंट समथिंग, और ये रहेगा 66 पॉइंट समथिंग, ये 33.33% रहेगा, तो ये रहेगा 66.67%। तो इससे आपको मालूम हो जाता है, ये आप कंपेरेटिव करेंगे तो ये एस कैरेक्टर है, ये पी कैरेक्टर है, इसका मतलब है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये नेट और स्टेट या पेट एग्जाम में ऐसा कुछ तो दिया जाता है, और आपको ये मालूम रह जाता है कि वो अप्लाई कैसा करने का है। ठीक है, और सो सिंपल रहता है, लेकिन ये आपको इक्वेशंस मालूम रहना चाहिए, और उसमें एस पी कैरेक्टर, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना एस कैरेक्टर है, कितना पी कैरेक्टर है, आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है।